you. Okay, so we are going to start. If time permits, I'll be taking 3 to 4 sessions. I wish to take prefix. It's a small session of 4 to 5 minutes. And then we are going to run towards discussion essay. We'll be taking 2 discussion essay and going to make things clear for you to write a discussion based essay. And then if time permits, once again, we'll be going for true, false, not given. I always believe that students face lots of problems in true, false, not given. So this session will definitely help them out. Okay, now these are the common prefix that you need to remember. For example, yeah, can you see a newer slide? Can you see a newer slide, everybody? Can you see a newer slide? There is an issue with my slide system. So yeah, can you see the new slide? Okay, so great. Now I know that IELTS vocab is very, very important, but it might not be possible for you to memorize all the vocab. The vocab is a very vast thing. तो मैं एक छोटा सा सेशन इसलिए लगा रहा हूं यहाँ पे कि आप अपनी दिलचस्पी इस तरफ बढ़ाए. If you know prefix and suffix of number of words, you don't need to remember all the prefix and suffix, but if you remember few of them, in case if you're not having the knowledge of that word, if you're not able to understand the meaning of the word, you are not able to recall that word, prefix और suffix का knowledge होगा तो आपको काफी काम लगेगा. So I'm not going to take a big session of prefix and suffix. I'm only going to take a small session. For example, अगर कोई भी चीज NT से start होती है, अगर कोई भी word है NT से start होता है, तो इसका मतलब होता है against. मतलब एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटीपैथी. एंटीपैथी का मतलब होता है लाइक के विरुद्ध, डिसलाइक. सो द मीनिंग ऑफ एंटीपैथी इज डिसलाइक. एंटी एस्टैब्लिशमेंट मतलब एंटी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहा है ये, तो इसका मतलब अगेंस्ट. सो एनी वर्ड दैट स्टार्ट्स विद एंटी, इसका मतलब होता है अगेंस्ट. द सेकंड वर्ड इज ऑटो. ऑटो मतलब खुद ही गवर्न करता है. फॉर एग्जाम्पल ऑटोबायोग्राफी, मैं खुद लिखता हूं तो मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग बायोग्राफी ऑफ माई सेल्फ, इट इज गोइंग टू बी ऑटोबायोग्राफी. ऑटोग्राफ, ऑटोमोबाइल, फॉर एग्जाम्पल ऑटोनॉमस बॉडी. आप शायद पढ़ते हैं काफी यूनिवर्सिटीज में, काफी जगह पे, तो आपको पता होगा कि ऑटोनॉमस बॉडीज होती है. ऑटोनॉमस बॉडी मतलब सेल्फ गवर्निंग. फॉर एग्जाम्पल नीरमा, इफ आई टॉक अबाउट, इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी, ऑल्दो इट इज मतलब वो खुद अपनी एक यूनिवर्सिटी है, उसको गवर्नमेंट का वो नहीं चाहिए. इट डजंट रिक्वायर द the stamp of the government to run. तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. थर्ड इज बाय. बाय मतलब दो, जैसे कि बाइसिकल, बायलिंगुअलिज्म, बायलिंगुअल. बायलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेजेस बोलने वाला. सो कोई भी वर्ड के आगे आता है बाय, तो इसका मतलब होता है दो. पहला है एंटी, सेकंड इज ऑटो, थर्ड इज बाय. आई वांट यू पीपल टू राइट दिस ऑन द पीस ऑफ पेपर. इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, लेकिन इसके बेहतर होगा कि अगर नोटबुक में लिखते हो तो आपको भविष्य में काम लगेगा. को मतलब साथ, जॉइंट. या आई वांट समबडी टू हेल्प मी आउट. इज एनीवन गोइंग टू हेल्प मी आउट फॉर रीडिंग दिस सो दैट आई कैन स्पेंड माय टाइम ऑन एक्सप्लेनेशन? या, कैन एनीवन हेल्प मी आउट इन रीडिंग दिस? यस, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू. Yes, who's going to help me out in reading this? Yeah. Just hold on. Yes, anybody can write down in the chat box so that I can unmute you. Write down in the chat box so that I can unmute you, so that you can help me out, please. Okay. So yeah, who's going to help me out? Write in the chat box. Yeah, Manoj, can you help me out with this? Okay, great. So let me see. Yeah, Manoj, you can unmute yourself. I have unmuted you. Are you willing to help me out? Yeah, Manoj, can you read? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yeah, so make sure that your voice is clear. So the third one is co. Co का मतलब होता है joint. Yeah, so you can read. Yeah, please. Co, together. Compression. Yeah. Composition. Okay, fine. Then counter. Its meaning against. And counter argument. Okay, काउंटर प्रोडक्टिव. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज आप करते हो वो प्रोडक्टिव नहीं है तो उसको हम कहेंगे काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब अगेंस्ट. कॉम का मतलब होता है टुगेदर. सो कंपैरिजन मतलब दो लोगों के साथ कंपैरिजन होती है. कंपोजिशन मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराप्स और कंक्लूजन मिला के जो चीज करते हो उसको आप कहेंगे कंपोजिशन. तो स्टार्ट तो कॉम से होता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कॉम से स्टार्ट होता है तो कुछ ऐसा है जो टुगेदर वाली बात है.
ओके, बाद में डिश, डिस अपोजिट, डिसेबल, डिससेटिस्फैक्शन। तो अगर आप कोई भी चीज के आगे डिस लगाते हो तो उसके पीछे का वर्ड जो होता है उसके ऑपोजिट हो जाता है। मतलब एबल है वो आदमी काफी एबल है, तो उसका ऑपोजिट हो जाता है डिसेबल। सेटिस्फेक्शन का एग्जैक्टली ऑपोजिट इज डिससेटिस्फेक्शन। सो एनी वर्ड स्टार्टिंग विद डिस, DIS, उसका मतलब होता है ऑपोजिट। देन एक्स फॉर्मर, एक्स कलीग, एक्स बॉयफ्रेंड। ओके, या मनोज, आपके वहां से आवाज आ रही है, सो कैन यू मेक श्योर, कैन आई गिव चांस टू अदर्स? Manoj? Yes, sure, sir. Sure. Thank you, thank you. You can mute yourself. Yes. Is anyone going to help me out in this? Yes. Riddhi. Okay, Riddhi will help me out. Chaliye. Yeah, Riddhi, you can unmute yourself. Yes, sir. Yeah, please go ahead with this session very fast. I would like to concentrate. ये सिर्फ आपको ये पता करने के लिए है कि आपको पता चले कि ये वर्ड्स ऐसे हैं जिससे आपको काफी वर्ड्स की नॉलेज मिल जाएगी। ओके, यू कैन स्टार्ट विद एक्स। हाँ, एक्स, इट्स मीनिंग अ फॉर्मर, एग्जांपल नाउन्स एक्स कलीग एंड एक्स बॉयफ्रेंड। ओके, एक्स का मतलब एक्स प्रिंसिपल, ये कॉलेज का एक्स प्रिंसिपल था, मतलब पहले वाला। ओके, हाइपर, हाइपर मीनिंग इज एक्सट्रीम, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, आपको शायद पता होगा कि अगर आपके शरीर में डायबिटीज मतलब प्रेशर है तो हम उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। सो हाइपर का मतलब कोई भी चीज ज्यादा होती है उसको हम कहेंगे हाइपर। ओके, देन इन, ऑपोजिट, इनएबिलिटी, इनकोहेरेंस। इनएबिलिटी, अगर कोई भी वर्ड इन से स्टार्ट होता है तो वैसा ही जैसे डिस में है, एबिलिटी के आगे इन लगा दिया तो उसका ऑपोजिट हो जाता है। सो मेनी टाइम्स बहुत सारे वर्ड्स है, मैंने काफी लोगों को पढ़ाए और वोकेबलरी, तो इन से बहुत वर्ड स्टार्ट होते हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इन है तो इसका मतलब पीछे वाला जो वर्ड है उसके आगे उसका ऑपोजिट हो जाएगा। इनकोहेरेंस मतलब आपका, अगर मैं बोलता हूँ ऐसे इज इनकोहेरेंट, मतलब इट इज नॉट कोहेरेंट। ओके, देन इंटर, बिटवीन, इंटरस्टेट, इंटरेक्शन। एग्जैक्टली, बीच के, इंटरस्टेट, हमारे राजस्थान और गुजरात के बीच में इंटरस्टेट ट्रैवल नहीं हुआ। इंटर मतलब इन दोनों स्टेट के बीच में। ओके, देन माल, पुअर, माल ट्रीटमेंट, मालवेयर। आपको शायद पता होगा माल न्यूट्रिशन करके भी एक चीज आती है। माल न्यूट्रिशन मतलब हमारे इंडिया में काफी बच्चे ऐसे हैं जो माल न्यूट्रिशन है, जिनको सही मायनों में न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो हम आगे कोई भी चीज के आगे अगर ML लगा देते हैं तो उसकी कमी है उसमें। चलिए, देन मिस, इनकरेक्ट, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस ट्रीटमेंट। वेरी गुड, देन नियो, न्यू, नियो कंजर्वेटिव, नियो लिबरलिज्म। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड है नियोफाइट, जो यहाँ पे नहीं दिया है। नियोफाइट का मतलब नया आदमी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस में एक नया आदमी को रिक्रूट करते हो और वो नया नया है अकाउंट में, उसको कुछ पता नहीं चलता, तो उसको हम बोलेंगे नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब होता है, नियो मतलब नया, तो कोई भी चीज के आगे नियो लग जाता है मतलब नया, इट्स बेसिकली न्यू, नया। ओके, देन पोली, मल्टीपल, पोलीग्लोट, पॉलीअमोरिस्ट। ओके, पॉलीग्लॉट, या पॉलीग्लॉट मतलब पर्सन स्पीकिंग लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस। सो अगर मैं आपको याद होगा हम छोटे थे तब पॉलीगॉन होता था। पॉलीगॉन मतलब हैविंग मल्टीपल साइड्स। ट्राइंगल में अगर 4 साइड होता है उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। पॉली मतलब मल्टीपल। ओके, देन री अगेन, री एंट्रेंस, री एग्जामिनेशन। ओके, आप रीअपियर होने वाले हो आईएलटीएस के लिए। मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके बैंड्स कम आए तो आप क्या कहेंगे हम लोग? आर यू गोइंग टू रीअपियर फॉर द एग्जामिनेशंस? तो री अगर आगे लगता है इसका मतलब होता है वापस। ओके, देन सब, अंडर, सब डिवीजन, सबमर्सिबल। सब डिवीजन मतलब अंदर क्या, सब स्टैंडर्ड। अगर आपको याद होगा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का माल दे दिया इसने मुझे, मतलब अंडर क्वालिटी का माल दे दिया। सब का मतलब अंडर, जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम। ओके, देन ट्रांस, अक्रॉस, उसका मतलब ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। अगेन वही होता है, ट्रांस अगर कोई चीज, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्टेशन। एग्जैक्टली, जैसे कि ट्रांस ग्लोब है, ट्रांस ग्लोब मतलब ग्लोब के अंदर अंदर, अक्रॉस द ग्लोब। हिज बिजनेस इज ट्रांस ग्लोबल, मतलब अक्रॉस द ग्लोब। और अंडर का मतलब, या अंडर इज बिलो, आई थिंक बिलो, अंडर ग्रेजुएट, and underpayment. Okay, so I hope I mean, I want, there are lots and lots of prefixes. I am not going to go further with this, but this must have given you idea कि अगर आप ऐसे words जो होते हैं, you can always write on the Google that list of common prefixes and suffixes. उसको आप मेमोराइज कर लेंगे तो काफी वर्ड्स, मतलब अगर आपको पता होगा कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आता है, यस नो नॉट गिवन आता है, अगर ये छोटा सा भी वर्ड पता चल जाएगा तो आपको पता you will get the idea whether I should go for true, false or not given. Is it clear everybody? Yes or no? So make sure that you try to have the practice. Thank you, Riddesh. Thank you so much.
Yeah, you can you can mute yourself. Is it clear everybody? Shall I move ahead with the new slide? ये सिर्फ आपको इत्तिला करने के लिए, just to make you aware that you need to be practicing about the prefix and suffix in your day-to-day life. Okay, thank you. Okay, let us go ahead with a new session now. I'm going to go for a new slide. Let me see. Essay writing kar de. Yeah, can you see a new slide, students? Yeah, can you see a new slide, everybody? Write in the chat box. Okay, great. Now I'm going to start with an essay writing today. I'm going to start with an essay writing, and we are going to discuss this essay. So before we go ahead, I believe that you all know, या तो फिर नहीं पता है तो मैं वापस समझाना चाहूंगा कि there are 5 types of essays in IELTS: opinion essay, discussion essay, problem solution essay, advantages, disadvantages, and finally double question essay. ये जो essay है वो कौन सा essay? Can anyone help me out with this type of essay? ये कौन सा type का essay है ये? Yes, can you tell me which type of essay is this? Write in the chat box, everybody. Write in the chat box. I want a super duper fast answer. Discussion essay. और आपको सबको पता होगा कि discussion में 2 प्रकार के essay आते हैं. There are 2 types of essays that comes in discussion. The first one is यहाँ पे ऐसा लिखा होता है, yeah, opinion essay. Yeah. Can anyone read this out for me? Yeah, can anyone help me out with this? Can anyone read this for me? Yeah, just a minute. Shraddha, yeah. Yeah, Shraddha, can you read? Yes, sir. Yeah, please go ahead. Some people think that you need more money to be happy, while others prefer to have more free time than money. Discuss both views and give your own opinion. Okay, fine. Now, in this type of essay, there are 2 usual types coming in IELTS. पहला, जैसे ये समझना पड़ेगा कि सर ये डिस्कशन वाला ऐसे है, उसमें कैसे पता चलेगा? ये कमांड के ऊपर से तो पता चलेगा ही चलेगा. But you need to also understand that sometimes this discuss word, even if it is not given, you need to understand. यहाँ पे देखिए 2 ओपिनियन है. So अगर आपका ओपिनियन वाला ऐसे है तो उसमें एक ही लाइन होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 स्टेप, 2 लाइन, there are 2 clauses. First, some people think that you need more money to be happy. काफी लोग ऐसा मानते हैं कि ज्यादा पैसे चाहिए तब आप खुश रह सकते हो. While others prefer to have more free time than money. काफी लोग ऐसा मानते हैं कि भाई फ्री टाइम अगर है तो ये ज्यादा अच्छा है in comparison to money. Now I need all of you to understand that अगर discuss both, अगर यहाँ पे लिखा है discuss both views and give your own opinion, but there is a possibility that you might only be required to discuss both views and you may not be required to give your own opinion. तो आपको opinion देने की जरूरत नहीं है. लेकिन एक चीज याद रखें कि डिस्कशन वाला ऐसे है तो इस फॉर्मेट को आप बिल्कुल याद रख सकते हो. So here you are going to write probably 10 to 12 sentences, 12 से 13 sentences लिख सकते हो. You can see, you can start like this. Some people argue that किसी पहले वाले का opinion, while others say that दूसरा opinion. Although से start कर सकते हो. कोई भी अगर ऐसे discussion से start होता है तो आप although से start कर सकते हो. Although ये काफी लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन मेरा रवैया ये है कि ये चीज को मैं मानता हूँ. That is what we call as my giving my opinion. So in the second sentence you are giving your opinion. You don't need to write this third statement as it is mentioned over here. ये compulsory नहीं है. This essay discusses both sides of the argument followed by my own perspective. ये लिखने की जरूरत नहीं है. If your sentence is starting from although, you're already giving your opinion over here, so there is no need for you to write this statement. So technically, you're only going to write 2 sentences in introduction. You can even write 3 sentences, लेकिन वो कैसे लिखा जा सकता है? I'll explain. Remember one thing I always keep on telling my students, that whenever there is a discussion based essay, you can always go for this on the one hand and on the other hand. ये चीज को आप memorize कर लीजिए. मैंने काफी बच्चों को देखा हुआ है कि on the one hand भी ठीक से नहीं लिखते, ऐसा लिख देते on one hand या तो फिर on other hand. ये लिखना बिल्कुल गलत है. It is grammatically incorrect. आपको ऐसा लिखना पड़ेगा on the one hand followed by a comma, और इस बॉडी पैराग्राफ में on the other hand followed by a comma. So this is a basic format that you can memorize. I am not saying that you should always follow this blindly, but this will definitely help you to get a kickstart in writing any possible introduction and body paragraphs. So kindly memorize this format, and then we are going to write utilizing this format. Now यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक चीज को आप गौर से देखें.
Some people think that you need money to be happy while others prefer to have more free time than money. तो पहले तो ये करना पड़ेगा कि हमें ये जो स्टेटमेंट है इसको पैराफ्रेज करना पड़ेगा. तो कैन यू टेल मी द वर्ड्स दैट यू कैन हैव टू पैराफ्रेज? मुझे बता पाएंगे कौन से वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो? थिंक के बदले कौन से वर्ड का इस्तेमाल करोगे? जैसे कि आप स्टार्ट करोगे मेनी पीपल बिलीव दैट, तो कैन यू हेल्प मी आउट विद द वर्ड्स दैट यू कैन यूटिलाइज इन ऑर्डर टू मेक इट, इन ऑर्डर टू पैराफ्रेज इट बेटर? मैं चाहूंगा आप लोग चैट बॉक्स में लिखे. आई वांट यू पीपल टू राइट इन चैट बॉक्स बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऐसे वर्ड्स है जो आप लिखोगे. या एक मिनट, लेट मी सी, आई एम गेटिंग, लेट मी सी, लेट मी राइट. और मैं चाहूंगा ये सारे बच्चे यहाँ पे लिखे क्योंकि ये वर्ड्स आपको काम लगेंगे पैराफ्रेजिंग करने के लिए. हर बार आप ऐसा नहीं लिखोगे सम पीपल थिंक दैट, तो उसके बदले कौन से वर्ड्स है जो मैं चाहूंगा? ओके, एज्यूम दैट, से दैट. ओके, जस्ट ए मिनट, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा से. जस्ट ए मिनट, ये कॉपी कर लीजिए, ये काफी बच्चे अच्छा दे रहे हैं. से देन एज्यूम. एज्यूम नहीं लिख सकते, एज्यूम के बदले बेटर होगा. यस, आई वांट यू पीपल टू राइट दिस फॉर यू. आर्ग्यू दैट, बिलीव दैट. जस्ट ए मिनट, मुझे लिखने दीजिए. मैं चाहूंगा सारे बच्चे लिखे बिलीव, फिर आर्ग्यू. यस, देन एनी अदर वर्ड्स एवरीबॉडी. आई वांट यू इमेजिन दैट. वो ठीक नहीं होगा, इमेजिन लिख सकते हो. ओके, देन एनी अदर वर्ड्स, क्योंकि ये आपको पैराफ्रेजिंग करने के लिए काम लगेगा. ओके, काफी लोग ऐसा भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू. काफी लोगों ने, हाँ, अकॉर्डिंग टू सम पीपल मनी इज मोर इंपॉर्टेंट, ऐसे भी करके लिख सकते हो आप. ओके, वेरी गुड. फॉलो दैट. फिर एनी अदर वर्ड, ये बहुत अच्छे वर्ड्स है. ओके, वेरी गुड. परस्यू दैट, वेरी नाइस. मेनी ऑफ यू आर रिटर्निंग परस्यू. परस्यू, स्पेलिंग चेक कर लेना. देन एनी अदर वर्ड, वेरी नाइस. रिफ्लेक्ट लिखा. ओपाइन, यू कैन ऑल्सो राइट ओपाइन. फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो आर ऑफ द, मेनी पीपल आर ऑफ द ओपिनियन, ये भी लिख सकते हो आप. देन यू कैन राइट, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, एंडोर्स. एंडोर्स का मतलब सपोर्ट. सपोर्ट भी लिख सकते हो आप. यू कैन से प्रीफर आ गया, प्रीफर, हाँ प्रीफर भी आ गया. जस्ट ए मिनट, मैं यहाँ पे इसको, ओके, देन प्रीफर के बाद थिंक भी लिख सकते हो आप. एनी अदर वर्ड? यस, आई कैन सी. A section of society considered that. Very good. A section of society. Okay, ऐसा भी कर सकते हो. और you can also write like this. आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो there is one school of thoughts. ये भी आप लिख सकते हो. Append मतलब attach करना. लेकिन ये काफी वर्ड्स है, मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स. ये बहुत अच्छे वर्ड्स निकल के आए हैं. ये ऐसे वर्ड्स है जो आप इसका पैराफ्रेजिंग करना है तो आप कर सकते हो. जैसे कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग, जस्ट अ मिनट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग के फॉर एग्जांपल थिंक, आप बिलीव, से, आर्ग्यू, इमेजिन, अकॉर्डिंग टू सम पीपल, फॉलो दैट, परस्यू, रिफ्लेक्ट, ओपाइन, आर ऑफ द ओपिनियन, एंडोर्स. एक अच्छा सा वर्ड निकल के आता है. जस्ट ए मिनट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. या दिस इज ऑल्सो वन मोर वर्ड यू कैन राइट, एडवोकेट. So many people advocate that. So I believe that ये काफी vocab आ गया आपके पास, so that you can paraphrase this first statement. Instead of writing some people think every time, you can also say some people believe that, some people argue that, some people imagine that, some people opine that, some people are of the opinion that, some people endorse that, some people prefer that, there is one school of thoughts, some people advocate that. तो अगर आपने यहाँ पे think लिखा तो यहाँ पे for example believe लिखा तो आप यहाँ पे endorse लिख सकते हैं. काफी चीजें, ये चीज से काफी आपको मदद मिलेगी. अंडरस्टूड नॉट? यस और नो? या हैव रिटन एवरीबॉडी? आई विल गो अहेड विद द न्यू स्लाइड देन. क्लियर हो गया? सो ये बहुत अच्छे वर्ड्स है जो आप आप डाल सकते हो ऐसे में पैराफ्रेज करने के लिए. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. ओके, आगे बढ़ते हैं. आई एम नाउ रबिंग दिस आउट. ओके, yeah, so this is the format that you can utilize. And now I want again, yes, can you read, Shraddha? Yeah, many people believe that wealth brings happiness while others opine that leisure
time is more essential. Although it is thought by many that money is more important than free time to be happy, I am of the opinion that free time should always be given more priority over money. Okay, fine. So, another way of writing. Yeah. First, so here I would like to say this is your first paragraph. तो पहला जो है this is वो आपका paraphrasing है, और दूसरा जो है आपको अल्दो से स्टार्ट कर सकते हो. अल्दो से स्टार्ट कीजिए, आपके ऑपोजिट साइड वाला है उसको पहले लिखे, एंड देन आपका जो रवैया है, आपका जो ओपिनियन है, आप जिस तरफ हो वो बाद में कॉमा के बाद आई एम ऑफ द ओपिनियन के साथ स्टार्ट कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन. लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली स्टेट, तो आपको आउटलाइन स्टेटमेंट ऐसे लिखना पड़ेगा. या प्लीज रीड श्रद्धा. Yes. Many people believe that wealth brings happiness, while others opine that others opine that leisure time is more essential. Yeah, leisure time is more essential. तो ये पहला जो सेंटेंस है वो तो ऊपर का ही है. It is basically, Maulik, it is great. Yeah, you can write that as well. तो ये तो हो गया. अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट चेंज होगा. यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन एक अलग स्टेटमेंट में दे रहा हूँ. ये भी एक तरीका है जो आप कर सकते हो. गो हेड. I believe that free time is more important than money for bringing happiness. Okay, fine. This essay, go ahead. This essay will first discuss how money can buy materialistic possessions, followed by the discussion that free time spent with the dear ones bring more happiness in life. Okay, ये ऐसे ये डिस्कस करेगा कैसे पैसे से आप मटेरियलिस्टिक मतलब जो चीजें हैं उसको खरीद सकते हो. उसके बाद ये भी डिस्कशन होगा कि आप ये कि फॉर एग्जांपल टाइम जो स्पेंड करते हो अपने नियर नजदीक वालों के साथ वो ज्यादा हैप्पीनेस लाएगा. ठीक है. नाउ दिस इज द सेकंड वे ऑफ राइटिंग, एंड यू कैन आल्सो राइट दिस वे. द इंट्रोडक्शन कैन आल्सो बी रिटन दिस वे. प्लीज गो अहेड. Many people believe that wealth brings happiness, while others opine that leisure time is more essential. I believe that free time spent with loved ones give more pleasure than money. Okay, fine. So मैं सबको ये कहना चाहूंगा, there are 3 introduction of the same essay. आप देख सकते हो कि 3 इंट्रोडक्शन लिखे, तीनों ठीक है, ठीक है, लेकिन तीसरा वाला जो है वो कम वर्ड्स हो जाएंगे. So I would want that क्या या तो फिर you follow the first introduction or you follow the second introduction. जिसमें although से करोगे तो बेहतर लगेगा. Although is a better way of writing out. If you are not confident about utilizing although, then you can also follow the second format. Is it getting clear, everybody? Yes or no? Is it clear the way of writing an introduction? I want somebody else. Yes, Shraddha, you can mute yourself. I want somebody else to write now. Read now. Who is going to help me out reading? I want everybody to participate. Yeah, Chirag, you can read. Yeah. Many people believe ये तो हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. Now this is the first paragraph. हमने खत्म कर दिया. अब दूसरा पैराग्राफ. On the one hand, कैसे स्टार्ट करना है? डिस्कशन वाला ऐसे है तो on the one hand पढ़िए. On the one hand, many prefer money over free time as they believe that money can buy anything. This is because people have become more and more materialistic and opine that materialism can be happiness. Can buy happiness. For example, a person who has more money can buy anything from expensive things to better medical treatment. In contrast, a poor person might not get good medical treatment if he is sick, and hence they think that money can remove any difficulties from person's life and bring happiness. आप देख सकते हो 4 सेंटेंसेस है. पहले सेंटेंस में हमने स्टार्ट किया ऑन द वन हैंड, क्योंकि हमें दोनों तरफ लिखना है. एक तरफ ये लिखना है, भले मैंने ये कहा है कि आई बिलीव दैट फ्री टाइम इज मोर एसेंशियल, लेकिन डिस्कशन वाला ऐसे है तो दोनों पैराग्राफ डेडिकेट करने पड़ेंगे आपको. ऑन द वन हैंड में इफ मनी का फायदा क्या है तो लिखा है कि मनी से आप मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद सकते हो, आपको बेहतर से बेहतर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी आप खरीद सकते हो, अच्छी से अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सकती है आपको. अगर कोई बेचारा गरीब आदमी है तो उसको शायद ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती. तो काफी लोग ऐसा मानते हैं कि पैसे से आप हैप्पीनेस ज्यादा हो सकती है. सो दिस इज योर फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ. नाउ आई एम गोइंग विद द थर्ड पैराग्राफ. गो अहेड. On the other hand,
वापस Spare time is सॉरी चिराग, रिमेंबर वन थिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड, 5 बार बोलो अपने दिल में, ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड। इतना सारा सिखाने के बाद मैंने काफी बच्चों के ऐसे लिख देखे हैं जिसमें ऐसा लिखा है ऑन वन हैंड, दी भूल जाते हैं लोग। सो याद रखना है ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड। ऑन लिखते वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारी चीजें लोअर केस में आएगी और कॉमा आएगा। So when you complete on the one hand and on the other hand, you always need to follow that with a comma, or else it is grammatically incorrect. Please go ahead, Chirag. On the other hand, spare time is pivotal in order to get some relaxation from daily routines so that one can spend time with the loved ones. This is important to break monotony of the day-to-day life, which can bring pleasure. For instance, a Harvard University of 75 years conducted on war veterans. चिराग वापस पढ़ो, गलत पढ़ लिया। For instance, a Harvard study of 75 years conducted on war veterans right from their childhood to their death revealed that people who spend time on their relationship not only live longer, but it also reduced their chance of being contracted with dementia and Alzheimer disease. Dementia and Alzheimer disease. On the other hand से हमने स्टार्ट किया, वहां पे ऐसा लिखा है स्पेयर टाइम इज पिवोटल। पिवोटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो जहां पे आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट, पिवोटल, सिग्निफिकेंट, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना है तो आप लिख सकते हो, नोटबुक में लिखिए। पिवोटल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट। सो ये 3 वर्ड्स आपको मिल गए जो आप इंपॉर्टेंट कहीं चीज लिखनी है उसके बदले लिख सकते हो। So spare time is pivotal in order to get some relaxation from daily routine, so that one can spend time with the loved ones. Loved ones मतलब हमारे जो साथ में नजदीक वाले। इसमें आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, उसमें आपके चिल्ड्रन, आपकी वाइफ, हस्बैंड, कोई भी। अब उसको एक्सप्लेन किया। यू कैन सी दैट आई एम नॉट गिविंग ए न्यू पॉइंट, आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग दैट पॉइंट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू ब्रेक मोनोटोनी। मोनोटोनी मतलब एक ही चीज, सुबह 9 से निकलना, 5 बजे वापस आना, वही करना, तो ये मोनोटोनी भी ब्रेक करता है, जिससे हमें प्लेजर मिलता है। एंड देन दे हैव गिवन वेरी गुड एग्जांपल। आई वांट यू पीपल टू लिसन टू दिस। ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और ये एग्जांपल सही भी है। A Harvard study of 75 years conducted on war veterans. War veterans मतलब जो फॉर एग्जांपल वॉर में अपनी लाइफ, फॉर एग्जांपल जो आर्मी में काम करते हैं और आर्मी से रिटायरमेंट लेते हैं, और उनके ऊपर स्टडी किया गया, तो उन्होंने ये पता चला कि चाइल्डहुड से लेके अपनी मृत्यु तक जो लोगों ने अपने रिलेशनशिप पे अपने लव्ड वंस के साथ ज्यादा समय बिताया, तो वो लोग ज्यादा अच्छी तरह से जी पाए और उनको डिमेंशिया और अल्जाइमर डिसीज भी नहीं हुआ, या तो फिर उनके चांसेस कम हो गए। आपको शायद पता होगा कि डिमेंशिया और अल्जाइमर में आदमी भूलना चालू कर देता है, लेकिन अगर आदमी अपने लव्ड वंस के साथ स्पेंड करता है टाइम, तो ये डिसीज से कॉन्ट्रैक्ट होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। So this is the third paragraph in which I am emphasizing the importance of free time. क्योंकि फ्री टाइम मिलेगा तभी आप अपने लव्ड वंस के साथ स्पेंड कर पाओगे और उसके फायदे हैं। So this is going to be the third paragraph. चौथे पैराग्राफ में याद रखना है कि वापस आपको रीइटरेट करना है। You need to also give your opinion once again. Please go ahead. In conclusion, both sides of argument have their merits. Although it is true that money can buy anything from material thing to happiness, I firmly believe that one should always give more emphasis to having more leisure time than money to stay physically and mentally happy. Very good. So this is going to be your fourth paragraph. You can again, you have restated your argument. You restated your opinion that you stated in the introduction part, जहां पे आप वापस कह रहे हो कि आपको लगता है कि लीजर टाइम ज्यादा महत्व रखता है आपकी लाइफ में इन कंपैरिजन टू मनी। इसके ऊपर से आप देख सकते हो, दिस इज द एंटायर एसे ऑफ 272 वर्ड्स। तकरीबन 10 से 11 लाइन है, नीचे लाइंस भी लिखे। इंट्रोडक्शन में 2 लाइन, बॉडी पैराग्राफ 2 में तकरीबन 4 लाइन है, बॉडी पैराग्राफ 3 में वापस 3 या 4 लाइन है, एंड इन कंक्लूजन देयर आर 2 लाइंस। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? Yes or no? I hope this must have cleared your idea about your writing. And yeah, Chirag, thank you so much. Thanks for you can mute yourself. Yeah, any questions, any doubts? So हमने काफी वर्ड्स देखे कि जिससे आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हो। वापस याद रखना है आपको ऑन द वन हैंड से स्टार्ट करना है, तीसरा पैराग्राफ ऑन द अदर हैंड से स्टार्ट करना है, एंड फाइनली इन कंक्लूजन। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड नाउ मौलिक? ये ज्यादा आप उसको देखोगे, फॉर्मेट को मेमोराइज कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा।
Okay, any questions, any doubts, students? Yeah, I want somebody else to read as well. Can anyone help me out? A person who's a good reader? Yes, who's going to help me out in reading? Yeah, Maulik, can you help me out? Hello, am I audible, sir? Yeah, you Sure. are absolutely audible. Thank you so much. Yeah, तो Yeah. एक दूसरा ऐसे भी वापस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कैसे इसका इस्तेमाल हुआ है. Please go ahead. Some people. Yeah, can you see, Maulik? Hello. Yes. Yeah, please read. Some people believe that. Okay. I'm not able to see the screen. 1 minute. दिख रहा है आपको? Some people believe that. Yeah, is everyone able to see the slide? Everybody? 1 minute. Okay. Can you read, Maulik, or I can give chance to others? Yeah, Maulik, you can mute yourself. I can ask somebody else to read. You can again come back again. Is it fine, Maulik? Okay. Yeah, can you read? Can you see the slide? Okay, who else is going to help me out? Yeah, can anyone help me out in reading? Yes. Yeah, Zeel will help me out, chaliye. Yeah, Zeel. Sir, am I audible? Yeah, you are absolutely audible. Go ahead. Okay. Some people think it is not a good idea for teachers to पहले, assign. Sorry. Zeel, ऊपर का पहले पैरा वो पढ़ो, ऐसे का topic. Okay. हाँ, done, sir, done. Some people believe that school children should not be given homework by their teachers, whereas others argue that homework plays an important role in the education of children. Discuss both views and give your own opinion. Okay, fine. Now before Zeel reads, let me explain you students that discuss वाला ही ऐसे है, अपना opinion भी देना है. आप देखो कैसे इसको हमने start किया है. Please go ahead. Some people think that. Read, Zeel. Zeel, you can unmute yourself. Yeah. Okay. Some people think it is not a good idea for teachers to assign home study tasks to school children, while others say it is an essential part of learning. I believe youngsters need homework to achieve better exam results, as it gives them a chance of entering higher education. Okay, fine. So first sentence is again going to be paraphrasing. ऊपर का जो है उसका paraphrasing है. Paraphrasing के लिए वापस हमने कहा वैसे opine, endorse, advocate, prefer words का इस्तेमाल करें. And in the second statement, although से start ना करते हुए directly अपना opinion दे दिया, I believe. लेकिन अगर आप अपना opinion देते हो तो याद रखना है कि sentence छोटा हो जाएगा. Although वाला sentence हर वक्त बड़ा बनता है. तो अगर आप अपना opinion देते हो, it's absolutely nothing wrong in that. But then you need to mention the reason कि क्यों ऐसा लगता है कि होमवर्क वाला चांस ज्यादा अच्छा है, तो लंबा सेंटेंस बनेगा. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, I believe youngsters need homework to achieve better exam results. तो एक कारण बताया कि better exam results मिलेगा as it gives them a chance of entering the higher education. तो अगर आपका ओपिनियन से स्टार्ट करना है तो give the reason why you believe that this is your opinion. Okay, start with on the one hand. On the one hand, some believe that homework is of no benefit and becomes a burden to school children. This is because pupils spend their whole day studying, taking part in after-school clubs, and feel exhausted after returning home. For instance, in Japan, the majority of youngsters are under pressure to complete vast amounts of homework along with extracurricular activities. If they fail to finish their assignments, they may not do well in exams, meaning they would be unable to get into a good high school. I think home assignments are beneficial, but children should not be put under this kind of pressure. इसमें हमने ये कहा है कि होमवर्क से फायदा नहीं है, बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं और प्रेशर में आते हैं घर में पढ़ नहीं पाएंगे, ऑलरेडी लोडेड है, अगर पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम में अच्छा नहीं करेंगे तो वापस हाई स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा. तो ऐसा प्रेशर काम का नहीं है. ऑन द अदर हैंड से वापस लिखना पड़ेगा. ज्यादातर लॉजिक ये होता है कि आप जिस ओपिनियन को बिलीव करते हो वो ओपिनियन आप सेकंड बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखे तो एक लॉजिकल ऐसे बनेगा,
ऐसा नहीं कि यहाँ पे अपना ओपिनियन वाला जो है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे लिखा है कि होमवर्क जरूरी है, तो डोंट स्टार्ट बॉडी पैराग्राफ विद दैट, इसके ऑपोजिट लिखो बॉडी पैराग्राफ यहाँ पे, और आपका जो ओपिनियन है वो बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखो. इट विल बी अ लॉजिकल ऐसे. प्लीज रीड जिल. On the other hand, it is widely believed that homework plays a vital role in the development of knowledge for students, and I agree with this. In other words, home study tasks help pupils understand school subjects better, which allows them to attain higher grades. For example, according to extensive research, pupils aged between 10 and 16 who are given a large amount of mathematics homework do far better in tests than those who are not given any home assignments. I believe that home study tasks improve a child's chances of entering tertiary education, which leads to a rewarding career. अगर बच्चा यहाँ से पढ़ता है तो ऐसा देखा गया है कि पढ़ेगा बच्चा तो आगे फॉर एग्जाम्पल वो सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से समझ पाएगा. एग्जाम्पल भी दिया है कि जो होमवर्क मैथमेटिक्स में अच्छा करता है वो टेस्ट में भी अच्छा कर पाता है, और उससे टर्सरी एजुकेशन मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कॉलेज एजुकेशन में उसके दाखिला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसका करियर भी काफी रिवॉर्डिंग हो जाएगा. तो इन दिस पैराग्राफ आई हैव मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ होमवर्क. मैंने हर वक्त पहले पैराग्राफ में भी लिखा है कि होमवर्क करना जरूरी है, मतलब होमवर्क होना चाहिए. उसी चीज को वापस मैं दोहराऊंगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ में. प्लीज रीड जिल. To conclude, although views differ concerning children being assigned homework, I would argue that home assignments are necessary to help pupils get high grades, enabling them to secure a place at university and improve their career chances. Very good. So you can see very simple format. First is going to be discuss and give your opinion. पहला लाइन पैराफ्रेजिंग करोगे. पैराफ्रेजिंग करने के लिए हमने वर्ड्स का डिस्कशन किया, एंडोर्स, एडवोकेट, प्रीफर्ड, जो आपने शायद लिखे होंगे. And this is going to be followed by second line, which is going to be your opinion statement. On the one hand से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करे, तीसरा पैराग्राफ मतलब बॉडी पैराग्राफ 2 ऐसे का तीसरा पैराग्राफ. On the other hand कॉमा करना है, on the one hand और on the other hand बिल्कुल लिखना है, and then give the extra other opinion, other side, and finally conclusion में उसी चीज को reiterate करना है, restate करना है. एक चीज मैंने अभी बताई, वैसे जो आप ओपिनियन जिस चीज का मानते हो उसको आप बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखे. It will be logical transformation, from one part to the other, और कोहेसिव ऐसे लगेगा. अगर आप यहाँ पे अपना ओपिनियन लगाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज को मानते हो तो गलत नहीं है, बट दिस इज मोर लॉजिकल. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? यस और नो? आई होप इट इज क्लियर. फॉर्मेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरीज. आप इस चीज को वापस देखेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. ओके, इज इट क्लियर एवरीबडी? आई वांट आंसर्स इन द चैट बॉक्स. Yes, students, please write in the chat box so that I could understand whether you have understood or not. Okay, great. Okay, so आगे बढ़ते हैं. Very important. आज हम करेंगे true false not given. मैं चाहूंगा कोई भी बच्चा जाए नहीं. Yeah, thank you, Maulik. So कोई भी बच्चा जाए नहीं. We will be doing. Just a minute. ओके, आर यू ऑल रेडी फॉर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन? नोटबुक लिख दीजिए. ये काफी अच्छे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो काफी चीजें क्लियर हो जाएगी. ओके, कौन रीड करेगा? हु इज गोइंग टू रीड नाउ? फटाफट. लेट मी नॉट एक्सप्लेन, लेट मी नॉट स्पेंड टाइम ऑन एक्सप्लेनिंग. हम लोग सिर्फ डायरेक्टली प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं. मैं इतना कहूंगा. यस, हु इज गोइंग टू हेल्प मी आउट? धवल. या धवल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. My voice is audible, sir? Yeah, it is audible. Okay, fine. So I'll just give a brief out, Dhaval. शायद रीड करने का बहुत कम आएगा, आपको प्रैक्टिस करने का ज्यादा आएगा, but still it is important. Okay, sir. Okay, so true, as you all know that students, true false not given comes in the reading part. हमने पहला जो किया वो प्रीफिक्स का किया. दूसरा जो पार्ट था डिस्कशन वाला ऐसे, जिसमें आपको अपना ओपिनियन भी देना है. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आंसर्स, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन योर रीडिंग. आपको पैराग्राफ दिया जाएगा समथिंग लाइक दिस, और पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस होंगे. यू नीड टू कंपेयर, रीड द क्वेश्चन, कंपेयर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ विद द इंफॉर्मेशन, कंपेयर द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन विद द इंफॉर्मेशन इन द पैराग्राफ. उसके जैसा है तो ट्रू, वरना फॉल्स, वरना नॉट गिवन. वापस कहना चाहूंगा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के जैसा ही एक दूसरा है यस नो नॉट गिवन. दोनों में ये फर्क है. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन is something wherein you are comparing with facts,
फैक्ट्स के साथ कंपेयर करते हो, और यस नो नॉट गिवन इज अबाउट कंपेयरिंग विद ऑथर व्यूज। दोनों का तरीका एक ही है, सेम है, लेकिन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपको फैक्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके केस में। ज्यादातर 5 to 7 क्वेश्चंस होंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के एक साथ, और आंसर्स तकरीबन सिक्वेंशियल ऑर्डर में होंगे। ऐसा ना भी हो कि ना हो, जैसे कि आप देख सकते हो देयर आर 6 क्वेश्चंस इन दिस केस, देयर आर 6 क्वेश्चंस इन अ ग्रुप, और यस नो नॉट गिवन है। मैं स्ट्रेटजीज पे गौर नहीं, या कैन यू रीड दिस क्विकली? Yes, sir. Always read the instructions carefully and make sure if it is a true, false, not given, or yes, no, not given question. Read all the statement carefully, trying to understand what the word sentence means rather than simply highlighting keywords. Watch out for qualifying words such as some or always. और ये सम और ऑलवेज की Third one, try to think. सॉरी सम और ऑलवेज के बेसिस पे मैं इसकी प्रैक्टिस देने वाला हूँ इस पैराग्राफ में, तो मजा आएगा आपको। प्लीज गो अहेड। Third one, try to think of what synonyms might be in the text. This will help you identify the matching part of the text. 4, always read the question first and then the paragraph. Read maximum 2 questions, not more at a time. If you are not comfortable reading 2 questions, go for reading only one. 5, the statement follow a chronological order. Once you find the first answer, proceed to the next sentence. ओके फाइन। सो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में पहली चीज याद रखनी है, आपको स्कैनिंग और स्कीमिंग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको याद रखना है कि सिनोनिम्स तो इस्तेमाल करेंगे ये लोग, लेकिन एक चीज का भी ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड्स होते हैं सम, ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन डिटरमाइनिंग वेदर द आंसर इज ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। एक साथ 2 क्वेश्चंस को पहले पढ़े, क्योंकि अगर पहले क्वेश्चन का आंसर नॉट गिवन है और अगर दूसरे क्वेश्चन का आपका अगर आंसर मिल जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर वाला जो है वो दिया नहीं है इन केस, तो उसका आंसर भी नॉट गिवन होगा। लेकिन अभी इसको हम प्रैक्टिकली ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ओके 10, 6, don't waste too much time on one question. If you can't find one, mark it not given. एग्जैक्टली। अब सीधे पैसेज पे आते हैं। मैं चाहूंगा सारे बच्चे इस पैसेज को गौर से देखें और इस पैसेज को पहले पढ़ ले। आई वॉन्ट यू पीपल टू रीड दिस पैसेज प्रॉपरली। कोई भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। जस्ट गो थ्रू इट। आई एम गिविंग यू 3 to 4 minutes to read this paragraph. या विशाल, ये पूरा रिकॉर्डिंग ही होगा, सो यू कैन।
Let me know when you have read. Everybody. Dhaval, have you read? Yes, sir. Entire passage? Okay, sir. No, you have read the entire passage? The British political. No. and I'm just asking, have you read the entire passage in your mind? No, sir. One हाँ, तो ठीक से पढ़ लो. paragraph is हाँ जी, पढ़ लो, remaining. पढ़ लो. मैं चाहूंगा सारे बच्चे रहे, बहुत मजा आएगा. Okay, sir. Okay. Yeah, has everyone read? Everybody? Dhaval has read, so I believe that, you know, if we go by his speed, assuming that his speed is absolutely your speed. Yeah, have you read, everybody? एक बार सिर्फ glimpse ले लो. You don't need to read it, you know, each and every line, but I want you people to just take a small glimpse of the entire passage. Now, sir, इसको कैसे अटैक करना है? First and the foremost thing आप क्या करेंगे? In the real examination, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ आपको पहले दिया, but in the real examination, you are going to read the questions first. पहले क्वेश्चन को पढ़ना है. लेकिन सबसे बड़ी बात, पहले ये भी देखना है कि हर एक पैराग्राफ में क्या क्या आता है. Now, if you read properly, students, you can see that in the first paragraph, it is mentioned that there are two political parties. The first is the Labour Party and the second one is Conservative Party. दोनों में लिखा है कि यू नो ऐसा यहाँ पे लिखा है कि दोनों के अपने अपने एक तरीके हैं, लेकिन अभी थोड़े सालों से इन दोनों के बीच में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है और पब्लिक काफी यू नो कंफ्यूज रहती है कि किसको वोट दिया जाए. और यहाँ पे बाद में लिखा है कि इट इज यूजुअल दैट फाइंड दैट ब्रिटिश वोटर विल लीन टुवर्ड्स सपोर्टिंग वन ऑफ दिस टू पार्टीज. इसमें से कोई भी एक पार्टी को सिलेक्ट करेगी. इन द सेकंड पैराग्राफ दे हैव मेंशन्ड व्हाट इज द यू नो मैनिफेस्टो ऑफ लेबर पार्टी. लेबर पार्टी गरीबों के लिए काम करती है, उसके बारे में है. इट इज मेंशन्ड इन द सेकंड पैराग्राफ. और यहाँ पे जो लोग पीड़ित है, जो लोग समाज में ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते, उनके लिए काम करती है. इन द थर्ड पैराग्राफ द मेंशन इज अबाउट कंजर्वेटिव पार्टी, जहां पे लिखा है कि ये ऐसी पार्टी है जो ज्यादा वेल्थ डेवलप करने के लिए खुला एक मैदान छोड़ देती है. ज्यादा वेल्थ होगी तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी, ज्यादा जॉब्स होंगे, उनका रवैया ये है. एंड फाइनल इन द लास्ट पैराग्राफ ऐसा लिखा है कि छोटी छोटी पार्टियों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता ब्रिटिश वोटर. वो इन दोनों पार्टीज के बीच में ही तय कर लेता है कि कौन सी पार्टी को दिया जाए. और ज्यादातर लास्ट केस में ऐसा भी लिखा है कि ब्रिटिश पब्लिक टेंड्स टू रेजिस्ट चेंज, मतलब वो चेंज नहीं चाहती, ज्यादातर जो है उसी को ही फॉलो करती है. सो व्हेनेवर यू आर डूइंग द रीडिंग स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मेन आइडिया हर एक पैराग्राफ का ले लेना जरूरी है. You can take this main idea by reading the first two sentences and the last sentence. इससे आपको पता चल जाएगा कि this passage is about what type of things. तो ये देख के मुझे पता चल जाता है कि पहला जो पैराग्राफ है is about दोनों पार्टीज के बीच में कॉमन क्या है. सेकंड पैराग्राफ इज अबाउट लेबर पार्टी, थर्ड पैराग्राफ इज अबाउट कंजर्वेटिव पार्टी, और लास्ट इज अबाउट छोटी छोटी पार्टियों के बारे में. वो लोग ब्रिटिशर्स उनको नहीं मानते, उनको फॉलो नहीं करते, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र है. This will help you out in getting the answer faster, students. अब क्या करेंगे हम लोग? We are going to read the. आप इसका चलिए, let us go ahead with this first one, and you need to tell me what is the answer. I'm going to give you 1.5 minutes per question. Question ऊपर लिखा है Britons usually vote for the party they supported early in life. 1.5 minutes. धवल आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो. You can now concentrate on the the reading, and I want people to give me answers in the chat box. और मैं समझाऊंगा उनको. You need to write true, false, or not given. That's it. I want everybody to participate. कम से कम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखना जरूरी है. सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. कम से कम लिखो ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन क्या है. एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट.
ओके, आई विल जस्ट मार्क आउट कि इसका आंसर जो है तकरीबन आपने देखा होगा इज समथिंग ओवर हियर। इसका आंसर यहां पे कहीं पे है। Okay, so I can see answers coming from all people. Let me read this for you once again. Nonetheless, it is usual to find that a British voter will lean towards supporting one of these two parties and remain faithful to that party for life. Remain faithful to that party for life. यहाँ पे आगे life में वो faithful रहेगा. लेकिन there is no mention there is no mention that Britons usually vote for the party they supported early in life. लाइफ में पहले उनको सपोर्ट जिसको करते थे उसको सपोर्ट करेंगे, मतलब पास्ट या हिस्ट्री के बारे में बात नहीं है। यहाँ पे जो मेंशन है वो फ्यूचर के बारे में है, और क्वेश्चन में जो है दैट इज बेसिकली अबाउट द हिस्ट्री, एंड देयर इज नो मेंशन अबाउट हिस्ट्री इन द पैराग्राफ, एंड हेंस द आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। इज इट क्लियर एवरीबडी? द आंसर इज देयरफॉर गोइंग टू बी नॉट गिवन। आपने काफी कीवर्ड्स को देख के अगर किया होगा तो काफी लोगों ने इसका आंसर ट्रू दिया होगा, बट द आंसर इज नॉट गिवन बिकॉज over here the mention, they are not mentioning anything about the past. यहाँ पे past के बारे में है, और यहाँ पे पैराग्राफ में future के बारे में है। there is no mention about the past and hence the answer is going to be not given. चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिंपल है ये। radical groups are only found within the Labour Party. Tell me the answer. ओनली पे जोर दीजिए। जब ओनली आता है तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि ओनली है तो क्या है। Akshay, can you explain me your answer? I'm unmuting you, Akshay. Can you explain me your answer? मैंने आपको अनम्यूट किया है. Can you unmute yourself? Okay, yes, sir. So can you read the question once again? Radical groups are only found within the Labour Party. Okay. Okay. तो अब मुझे बताओ इसका लोकेशन कहाँ है, कौन सी लाइन में, कौन से पैराग्राफ में है? In fact, if Very it good. would be Exactly. true Exactly. to say that both parties. Yeah, just a minute. ये यहाँ पे है ना? हाँ या ना? Correct me if I'm wrong. Yes. Okay. अब मुझे बताओ क्या लिखा है? It would be true to say. पढ़ो। That both parties consist of conservative, moderate, and radical elements. हाँ। And therefore the बस general. खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। हाँ। अब मुझे बताओ क्या आंसर होगा? What is the answer? Why false? बोथ पार्टी के लिए वो वर्क कर रहे हैं। हाँ, बोथ, दोनों पार्टीज में रेडिकल एलिमेंट्स है, दोनों पार्टीज में रेडिकल एलिमेंट्स है, और यहाँ पे ऊपर लिखा है कि सिर्फ ऊपर लिखा है क्या है, या ऊपर लिखा है कि सिर्फ रेडिकल ग्रुप आर लेबर पार्टी में ही पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि दोनों पार्टीज में रेडिकल एलिमेंट्स है, और ऊपर लिखा है सिर्फ एक ही पार्टी में रेडिकल एलिमेंट है। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर ओनली शब्द का प्रयोग नहीं होता, अगर ऐसा लिखा होता रेडिकल ग्रुप्स आर फाउंड विद इन द लेबर पार्टी, व्हाट वुड हैव बीन द आंसर स्टूडेंट्स? अगर ओनली शब्द का प्रयोग नहीं होता तो व्हाट वुड हैव बीन द आंसर? यस और नो? आई वांट आंसर। या यू कैन म्यूट योरसेल्फ नाउ। अक्षय, थैंक्स फॉर दैट। हाँ, तो ट्रू होता। या थैंक यू अक्षय। इज इट गेटिंग क्लियर? तो ओनली के कारण इसका आंसर हो जाता है फॉल्स। एवरीबडी, इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? I am trying to go slow, students, ताकि आपको पता चले. I am not looking at the time. I am trying to go slow that everybody is able to understand. Is it clear now? Yes or no? Write in the chat box, students. Yes or no? Okay, great. चलिए आगे बढ़ते हैं. Read. अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? Some British voters are confused about who to vote for. Confused है.
Zil, explain why it is. What is your answer, Zil? Sir, the answer is true because sir, perplex means Very good. confused. इसका मतलब यहाँ पे एक छोटी सी चीज है परप्लेक्स. परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज. तो यहाँ पे जो बात आती है वो परप्लेक्स्ड है. परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, और कंफ्यूज नहीं लिखा है ऊपर, तो यहाँ पे वोकैब का थोड़ा सा काम आ जाता है. सो आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू. इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबडी? अंडरस्टूड? सो डोंट वरी अबाउट नॉट गेटिंग द आंसर, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूज का मतलब ही होता है परप्लेक्स. आई एम परप्लेक्स, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू. तो इसके लिए इसका आंसर होगा ट्रू. ओके फाइन, ग्रेट. देन आगे बढ़ते हैं. ये बहुत अच्छा है. टेल मी व्हाट इज द आंसर. लेबर पार्टी आपको पता चल जाना चाहिए कि लेबर पार्टी है, तो इट इज गोइंग टू, द आंसर इज गोइंग टू कम इन द सेकंड पैराग्राफ ओनली. कीवर्ड्स आपको पता चलेंगे. आंसर पास में लाने के लिए कीवर्ड्स करना पड़ेगा. आंसर वापस लाने के लिए कीवर्ड का इस्तेमाल, आंसर के नजदीक जाने के लिए कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो. ओके फाइन, लेट मी एक्सप्लेन. क्या लिखा है? द लेबर पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय द ट्रेड यूनियंस. वो ट्रेड यूनियन से बना हुआ है. सो मैं कैसे करूंगा? हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस? आई विल डू इट दिस वे. पहले मैं करूंगा ट्रेड यूनियन कहाँ पे है. लेट मी सी वेयर इज द, ये लेबर पार्टी है और ट्रेड यूनियन का जिक्र दिया है यहाँ पे. है स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद द ट्रेड यूनियंस. ओके आगे कहीं पे है? ओके इस पैराग्राफ में कहीं पे भी और कहीं पे भी ट्रेड यूनियंस का जिक्र नहीं है. यहाँ पे लिखा है कि लेबर पार्टी है स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद द ट्रेड यूनियंस, और ऊपर लिखा है फॉर्म बाय द ट्रेड यूनियंस. ये ट्रेड यूनियन से बनी हुई है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है. आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. इज इट क्लियर? मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूंगा कि मैं गरीबों से, मेरी पार्टी गरीबों को सपोर्ट करती है, ऐसा पैराग्राफ में दिया है, और क्वेश्चन में दिया है मेरी पार्टी गरीबों से बनी हुई है, तो आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. व्हेन आई से दैट लेबर पार्टी इज सपोर्टिंग ट्रेड यूनियन, there is no mention whether labor party is formed by the trade union, and therefore the answer is going to be not given. Understood everybody? Yes or no? Is it clear everybody? पता चला? देखिए कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको कंफ्यूज किया जाता है. So it helps you out. चलिए आगे बढ़ते हैं. Just a minute. Any doubts before we go ahead? Are you all there, students? Shall I continue, or it is almost 1 hour and 5 minutes? So do you want me to continue first of all? There are 3 to 4 more. या कंटिन्यू करेंगे? मजा आएगा आपको. जस्ट कंटिन्यू विद दिस. हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए लेट अस डू, बट डोंट गो अवे. या लेट अस गो हेड. 5वां करते हैं. लेट अस गो फॉर द 5th वन. या थैंक यू सो मच. या 5वां करते हैं. चलिए. पॉलिसीज इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ए वेलफेयर सोसाइटी आर कॉस्टली. तो कीवर्ड ढूंढो. वेलफेयर सोसाइटी कहाँ पे है? और कॉस्टली कहाँ पे है? ओके कहाँ पे है? वेयर इज गिवन? आई कैन सी लॉट ऑफ आंसर्स कमिंग. वेलफेयर सोसाइटीज का जिक्र कहाँ पे है? ध्रुवी कैन यू एक्सप्लेन? Ruby, can you explain? Yes, sir. The main problem is that such socialist agendas. Just hold on. Where can you just help me locate the answer? Where is it given? Second paragraph. In which line? The main problem. Just a minute. Let me see. कहाँ पे है? In the middle paragraph. Yeah. Tell me. The main problem is that such
such socialist agendas are extremely expensive to implement and maintain. Exactly. इससे पता चल रहा है काफी एक्सपेंसिव है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और वही चीज यहाँ पे लिखी है ऊपर. इट इज गिवन ओवर हियर दैट वेलफेयर सोसाइटी आर कॉस्टली. कॉस्टली का मतलब होता है एक्सपेंसिव, और इसी के लिए आंसर ऑफ 5th इज गोइंग टू बी ट्रू. अंडरस्टूड एवरीबडी? यस और नो? अंडरस्टूड? ओके, राइट इन द चैट बॉक्स हैव यू अंडरस्टूड और नॉट. तो यहाँ पे लिखा एक्सपेंसिव है, उसको इंप्लीमेंट करना, देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू. ओके, आगे बढ़ते हैं. सिर्फ एक दो और. ओके, हाँ ये बहुत अच्छा है. चलिए, वेलफेयर बेस्ड सोसाइटी इनवेरिएबली बिकम बैंकरप्ट. बहुत अच्छा है. बैंकरप्ट देखो ये काफी यूनिक वर्ड है, आपको पता चल जाना चाहिए कि बैंकरप्ट कहाँ है. फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ बैंकरप्ट. कहाँ है बैंकरप्ट? या विदल, कैन यू एक्सप्लेन? या विदल, कैन यू एक्सप्लेन? या विदल, कैन यू एक्सप्लेन? Yes, sir. So it is in second paragraph. Just hold on. First of all, can you read? Can you explain me the question? Yeah, welfare-based societies invariably become bankrupt. Okay, अब सब लोगों को मैं यहाँ पे एक चीज ध्यान देखना चाहूंगा. इसको हम एक्सट्रीम वर्ड्स कहेंगे. इनवेरिएबली मतलब 100%. हर बार 100%, वेलफेयर सोसाइटी जो होगी वो 100% बैंकरप्ट हो जाएगी, ऐसा लिखा है. यस और नो विरल? Yes, sir. इनवेरिएबली का मतलब ये निकलता है. इनवेरिएबली मतलब 100%. Okay, now tell me where is the location? The location is in the second line of second paragraph. Welfare societies tend towards bankruptcy unless government spending is kept in check. Okay, so what is the meaning of welfare societies tend towards bankruptcy? उसका मतलब क्या होता है? Much is spending towards the bankrupt. नहीं, मतलब tend. What is the meaning of tending? Tending का मतलब उस तरफ झुकना. तो वेलफेयर बेस्ड सोसाइटी है वो बैंकरप्सी हो सकती है अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को चेक नहीं किया गया. तो मैं सब बच्चों को ये कहता हूं कि अगर पैराग्राफ में लिखा है कि कोई चीज हो सकती है, और अगर क्वेश्चन में लिखा है कोई भी चीज हो जाएगी, द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉल्स. तो छठे का आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स. अगर वेलफेयर बेस्ड सोसाइटीज में बिकम बैंकरप्ट होता तो आंसर कुड हैव बीन ट्रू. वापस कहना चाहूंगा, वेलफेयर बेस्ड सोसाइटीज में बिकम बैंकरप्ट होता तो आंसर वुड हैव बीन ट्रू. लेकिन यहाँ पे लिखा है वेलफेयर बेस्ड सोसाइटीज हर बार बैंकरप्ट होगी, उसी के कारण आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स. हैव यू अंडरस्टूड? यस और नो एवरीबडी? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. अगर ये चीज आती है तो कैसे करना, ये चीज आती है तो कैसे करना, इससे पता चलेगा आपको कि आप जब एग्जाम में करते हो तो कैसे ध्यान रखना है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. विरल, यू कैन अनम्यूट. चलिए ये लास्ट करते हैं एंड देन विल डिसकंटिन्यू. ओके, yeah, Akshay, I'll explain. Yeah. क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और देखो ये इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है. ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट द राइट आंसर. एवरीबडी, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, समझो और अपनी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो. The Conservative Party was formed after the Labour Party. The Conservative Party was formed after the Labour Party. चलिए, yes, can you explain? चलिए, yes, I have unmuted you. Can you unmute yourself? Yes, sir. So क्या है क्वेश्चन का मतलब क्या है? Question stated that the Conservative Party
has generated or formed ना, after the Labour. हाँ, was formed after the Labour Party. हाँ, तो Yeah. मतलब लेबर पार्टी पहले कौन सी बनी क्वेश्चन के हिसाब से? पहले बनी कंजर्वेटिव पार्टी. नहीं, क्वेश्चन पहले बनी लेबर पार्टी, उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी बनी. वो लिखा है 7 नंबर के क्वेश्चन में, हाँ या ना, यस और नो? लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे, देखो लेबर पार्टी यहाँ पे पहले दी है और बाद में कंजर्वेटिव पार्टी दी है, तो इसका मतलब तो यही होता है ना. देखो पैराग्राफ में पहली कौन सी दी है? यस, पहले पैराग्राफ में दी है लेबर पार्टी एंड देन. तो फिर मतलब ये तो ट्रू हुआ ना, ये तो ट्रू हुआ ना. बट दिया नहीं है ना, मतलब वेरी गुड, कोई स्टेटमेंट. हाँ, तो अगर पैराग्राफ में भले लेबर पार्टी का जिक्र पहले हुआ है और बाद में कंजर्वेटिव पार्टी का जिक्र हुआ है, लेकिन कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कौन सी पार्टी से पहले बनी हुई थी. पैराग्राफ में लेबर पार्टी का जिक्र पहले होने से कतई ये नहीं कह सकते हम कि कौन सी पार्टी पहले बनी थी. देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. थैंक यू. यस, ओके, इज इट क्लियर नाउ? ऑलमोस्ट सवा घंटा होने को आया है. काफी बच्चे कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा वो है. यस, आई होप you enjoyed this session, everybody. Yeah, so we did 3 things today. हमने 3 चीजें की. नंबर 1 इज फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है. सेकंड में डिस्कशन वाला ऐसे अब आपको गलती नहीं होनी चाहिए डिस्कशन वाले ऐसे में. And third is true, false, and not even. Thank you so much, students. Thank you very, very much. I'm just, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज पे सेशन लूँ तो आप मुझे कह सकते हो. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स के सर हमें ये कौन से सेशन में सर आप चाहते हैं कि सर मैं लूँ, तो आई कैन टेक दैट सेशन एज वेल. इज देयर एनी स्पेसिफिक डिमांड दैट यू वांट मी टू टेक? राइटिंग टास्क 1 या ग्राफ में लूंगा. तो मैं ग्राफ लूंगा. नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेक अ ग्राफ फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स. हेडिंग्स भी ले सकते हैं. एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट दिस थिंग्स आर क्लियर्ड आउट. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच. Okay, Riddhi. Sure. Okay, listening. Okay.